بلیٹن کے آغاز میں بتاتے چلیں مرتضی وہاب نے کراچی والوں کو بڑی سہولت دے دی۔ شہر کی 46 سڑکوں پر پارکنگ بالکل مفت، کوئی فیس نہیں لی جائے گی، غیر قانونی پیسے لینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پارکنگ فیس کا بوجھ شہریوں سے ہٹا دیا، کی ایم سی مستحکم 4 سے 5 کروڑ روپے کی پارکنگ فیس کی ضرورت نہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کی ایم سی کو 4 سے 5 کروڑ روپے کی پارکنگ فیس کی ضرورت نہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر کے پارکنگ فیس کا بوجھ شہریوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب کے ایم سی اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ 106 مرکزی سڑکوں میں سے 46 پر پارکنگ فیس مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اساتذہ کی بھرتیوں کے تمام مراحل مکمل ہونے کا آخری روز 85,628 ملازمین میں آفر آرڈر تقسیم۔ دستاویزات کے مطابق 82,214 اساتذہ بھرتی کیے گئے۔ ویٹنگ لسٹ میں شامل اساتذہ کی بھرتیاں نہ ہو سکی۔ کل سے ایس ٹی آر پالیسی پر عمل ہوگا۔ وزیر تعلیم نے اجلاس طلب کر لیے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات آزاد نوہڑیوں کی رپورٹ میں جانیے۔ سندھ حکومت محکمہ اسکول تعلیم میں اساتذہ کی خالی اسامیوں پر بھرتیاں کرنے میں بازی لے گئی۔ 2021 سے جاری بھرتیوں کے تمام مراحل آج مکمل ہو جائیں گے۔ پرائمری اور جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی بھرتیاں آج کے بعد بند ہو جائیں گی۔ محکمہ اسکول تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ ہیومن ریسورسز کے مطابق سرکار 2021 سے اب تک 85,688 امیدواروں کو آفر آرڈرز تقسیم کر چکی ہے۔ پرائمری اسکول ٹیچرز کی 60,780 اور جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی 24,848 آفر آرڈرز تقسیم کیے گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق 82,214 اساتذہ کی بھرتیاں کی گئیں، جس میں پرائمری اسکول ٹیچرز 58,482 اور جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی 23,732 بھرتیاں کی گئیں، جبکہ 89,986 اساتذہ نے اسکولز میں جوائننگ دے دی ہے، جس میں پرائمری اسکول ٹیچرز 56,921 اور جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز 23,065 نے جوائننگ دی۔ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی بھرتیاں 10,884 لیکچرارز کمیشن کے امتحان پاس کر کے بھی بھرتی ہو گئے۔ دستاویزات کے مطابق 69,602 اساتذہ اسکولز میں پڑھانے لگے، جس میں پرائمری اسکول ٹیچرز 47,101 اور جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز 22,501 پڑھانے لگے ہیں۔ 1,181 امیدواروں کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے، جس میں پرائمری کے 887 اور جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز 294 کی اسکروٹنی جاری ہے۔ سندھ سرکار کی دی گئی ڈیڈ لائن 30 جون آج ختم ہو گئی۔ ویٹنگ لسٹ میں شامل اساتذہ کی بھرتیاں نہیں ہو سکیں گی۔ اسامیاں نہ ہونے پر وزیر تعلیم نے صاف انکار کر دیا۔ جولائی 2025 سے ایس ٹی آر پالیسی پر عمل ہوگا۔ ایس ٹی آر پالیسی کے تحت گنجائش سے زائد اساتذہ کا تبادلہ ہوگا۔ اساتذہ کو بند اسکول کھول کر خالی اسامیوں پر تعینات کیا جائے گا۔ اگلے ماہ 15 جولائی کو ایس ٹی آر پالیسی پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے کل سے ایس ٹی آر کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ ایس ٹی آر پالیسی پر عمل کراچی سے شروع ہوگا، جبکہ 1 اگست 2025 سے اسکول کھلیں گے۔ اساتذہ کی بھرتیاں 2021 میں سابق وزیر تعلیم سعید غنی نے شروع کی تھیں۔ وزیر تعلیم سید سردار شاہ نے بھرتیوں پر عمل درآمد کروایا۔ تمام بھرتیاں تھرڈ پارٹی آئی بی اے سکھر کے ذریعے کی گئیں۔ آزاد نوہڑیو سٹی 24۔ 2-4 گھنٹے نہیں 4 دن سے دھابیجی پمپنگ سٹیشن کی بجلی بند۔ ڈملوٹی پمپنگ سٹیشن پر بھی بریک ڈاؤن۔ بجلی کی بندش سے شہر کو 280 ملین گیلن پانی کی کمی۔ ناظم آباد، نیو کراچی، لانڈھی اور کرنگی کے علاقے متاثر۔ شدید گرمی میں مختلف علاقوں کے رہائشی بجلی اور پانی سے محروم۔ ناظرین بتاتے چلیں کراچی میں مخدوش عمارتیں جانوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ کھارا در میں 7 منزلہ عمارت کے درمیان بنے کوریڈور کی چھت گر گئی۔ خوش قسمتی سے تمام 22 مکینوں کو بر وقت بچا لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کے مطابق عمارت مخدوش تھی اور نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ تفصیلات میر کیریو کی رپورٹ میں جانیے۔ اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش عمارتیں وبال جان بن گئیں۔ 2 عمارتوں کے درمیان کوریڈور کی چھت گر گئی۔ ریسکیو اداروں کا بروقت ایکشن تمام 22 رہائشیوں کو بحفاظت نکال لیا۔ 7 منزلہ عمارت کے درمیان بنے کوریڈور کی چھت گری
तो मुतअद्दिद फ्लोर्स की सीढ़ियाँ भी गिर गईं। इमारत की टंकी गिरने से जीनों और कॉरिडोर को भी नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत के पत्थर गिरना शुरू हुए और अचानक छत गिर गई। ऊपर की छत जब डैमेज होकर नीचे गिरी है वो भी टूटी है। जब लोड मजीद बढ़ा तो इस तरीके से नीचे तक वो तमाम पैसेज एक दूसरे से जुदा हो गए थे। हादसे के बाद बिल्डिंग की तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल पर लोग फंस गए। रेस्क्यू हुकाम ने स्नार्कल और क्रेन की मदद से बाहर निकाला। तंग गलियों और दुश्वार रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना रहा। पोर्शन गिरने की वजह से जख्मी इसमें कोई नहीं हुआ। अब तक जो है ईदी फाउंडेशन की टीम ने 5 अफराद और 4 खवातीन समेत टोटल 9 अफराद को जो है वो रेस्क्यू कर लिया है। लाइन डिपार्टमेंट सब मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंजरी नहीं हुई। जितने भी 5 अफराद थे उनको सेफली हमने निकाल दिया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने बताया इमारत मखदूश थी जिसे नोटिस जारी किए गए थे। 300 के करीब इस तरह की बिल्डिंग्स हैं। वो अभी ये प्रिलिमिनरी फिगर है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। हमारे पास हर माह 2 मीटिंग होती हैं, डेंजरस बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग होती है। उसमें हमने कुछ बिल्डिंगें डेमोलिश भी करवाई हैं। इमारत में सर्चिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। बिल्डिंग काफ़ी साल पुरानी थी, मरम्मती काम भी जारी था। हादसे के बायस इमारत में मौजूद सामान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। कैमरामैन हारिस के साथ मीर की रियो, कराची। अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि कराची की टूटी फूटी सड़कों की हालत बारिश से मजीद अबतर। मेयर कराची का भी शहर की सड़कों की तबाही का एतराफ़। मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर बल्दियात सईद गनी को ख़त लिख दिया। लिखा, शहर की बेशतर सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। हालिया बारिशों से मजीद बिगाड़ पैदा हुआ। यूटिलिटी इदारों ने अहम शाहराएँ और गलियाँ खोदी। रोड कटिंग चार्जेस TMCs को मौसूल हुए हैं। भारी रकम लेने के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वफाक की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। हाफिज़ नईमुर्रहमान हिलाकियात का मुजाहरा करते हुए सिंध असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो जाएँ कि इलेक्ट्रिक अवाम को बिजली फराहम करने में नाकाम हो चुकी। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में जानिए। सीनियर सूबाई वज़ीर के सियासी मुखालफिन पर वार। वफाक में हुकूमत में शमूलियत से इनकार। महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया विंग में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जमात इस्लामी का काम सिर्फ तनकीद करना रह गया है। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने बिला वजह सिंध असम्बली की नशस्त रोक रखी है। पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। ऐसा हुआ तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। बड़े शहरों में 12-12 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। बदमाशी से पानी बंद किया गया तो सख्त रद्द अमल देंगे। किसी का भी कोई हद तलफी की बात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो उसमें नंबर्स, वो कहते हैं कि नंबर सिर्फ नंबर्स ही हैं। डायलॉग के जरिए, दलीलों के जरिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस मुकदमे को विदिन कमरों में बैठकर उन प्लेटफॉर्म्स पे प्लीड किया, उसको मैटर को रिजॉल्व करवाया। सीनियर वज़ीर ने कहा कि कालाबाग डैम को 3 सूबाई असम्बलियाँ मुस्तरद कर चुकी हैं। फिर पता नहीं क्यों मुस्लिम लीग नून के वज़रा बयानात दे रहे हैं। सवात में अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन इस पर सियासत नहीं करना चाहता। PTI का वजूद है, मगर उसे मनफी सियासत को छोड़ना होगा। IMF ने वो शर्त रखी थी कि जी आपके सारे सूबों जो हैं वो ये चीजें करें। हमारे पास मैंडेटरी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो मुल्क के मफाद की बात थी तो हमने कहा यस, कि हम नहीं चाहते कि खुदा न खासा कोई लोन में कोई प्रॉब्लम हो या पाकिस्तान की मुआशी हालत खराब ना हो, कोई खराब हो। इसलिए पीपल्स पार्टी ने पॉजिटिव रोल रखा। तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये सोच नहीं रखी कि हम खुदा न खासा किसी को अपने ब्लैकमेल करना है या किसी को वो चीज़ करनी है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि नए माली साल में मज़ीद 1000 बसें लाई जाएंगी। तालीम, सेहत, रोज़गार के हवाले से सिंध हुकूमत अहम इक़दामात करने जा रही है। कैमरामैन शाहज़ेब रज़ा के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। बताते चलें, मैट्रिक इम्तहानात में किराए पर फर्नीचर लेने का मामला
कोरोना वबा में किराए के फर्नीचर की अदम वापसी पर कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए के नुकसान का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा हक़ाइक़ सामने आ गए। कोरोना वबा में इम्तहानात मुलतवी होने से किराए पर लिए गए फर्नीचर की अदम वापसी पर कौमी ख़जाने को 2 करोड़ 43 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इस मामले में मैट्रिक बोर्ड कराची के अफसरान की गफलत, इम्तहानी मराकज़ के लिए फर्नीचर किराए पर लेने में बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। अकाउंट्स कमेटी की हिदायत के बावजूद मालूमात फराहम न की गई। ऑडिटर जनरल ने फर्नीचर किराए पर लेने के मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुस्तकबिल में नुकसानात से बचने के लिए निज़ाम बेहतर बनाने और शफाफियत के लिए ज़िम्मेदारान का तयन और माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात का कहा गया है। शहरियों के लिए अच्छी खबर, ओगरा ने LPG की कीमत में 7 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो कमी कर दी। जुलाई के लिए फ़ी किलो LPG 240 रुपये 53 पैसे से कम होकर 233 रुपये 10 पैसे हो गई। ओगरा ने दरामदी कीमत कम होने पर माह जुलाई के लिए LPG सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने LPG की सरकारी कीमत में 7 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो कमी कर दी। जुलाई के लिए फ़ी किलो LPG 240 रुपये 53 पैसे से कम होकर 233 रुपये 10 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई, जिसके बाद 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर की कीमत 87 रुपये 71 पैसे कम हो गई और घरेलू सिलेंडर 2,838 रुपये से कम होकर 2,750 रुपये का हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेंगू ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। कातिल मच्छर ने एक और जान ले ली। कराची में डेंगू से पहली मौत रिपोर्ट। 24 साल शख्स गुज़श्ता कई रोज़ से इन्फेक्शन डिसीज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज था। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे भर में रवा माह 32 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। अपडेट ये है, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SPCA की कार्रवाइयाँ। मलीर में खिलाफ नक्शा तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन इमारत सील। हुक्काम के मुताबिक इन्हितामी कार्रवाई के बाद प्रोजेक्ट को सील किया जाएगा। अपडेट ये है, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SPCA की कार्रवाइयाँ। मलीर में खिलाफ नक्शा तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन इमारत सील। हुक्काम के मुताबिक इन्हितामी कार्रवाई के बाद प्रोजेक्ट को सील किया जाएगा। बताते चलें, कराची में बारिश तो थम गई, लेकिन रेलवे के मसाइल आज भी जूं के तूं हैं। ट्रेनें अब भी घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। मामूली बारिश के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासर हो गई। मुसाफिरों ने इंतज़ामिया को आड़े हाथों ले लिया। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में जानिए। मामूली बारिश से रेलवे का निज़ाम शदीद मुतासर, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर, मुतादिक ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। कैंट स्टेशन पर मुसाफिर रुल गए। स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान, पीने का पानी भी मैसर नहीं। मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। इनका कहना था कि रेलवे में सब ठीक कर रोक अपनाने वाले यहाँ आकर देखें मुसाफिर किस आजमाइश का शिकार हैं। अब्बासी साहब आए, क्या किया है? कह रहे कि हमने सब कुछ सही कर दिया। कहाँ से कर दिया? ये देखें लेट, ये कितनी गाड़ी लेट हो रही है। ये सही क्या इन्होंने आती तो बड़ी देर के यहाँ सफ़र करें, कभी टाइम से गाड़ी आई नहीं। टिकट पूरा लेते हैं? टिकट पूरा लेते हैं। सहूलत पूरी नहीं है? कोई सहूलत नहीं है। वॉशरूम में पानी नहीं, पंखे नहीं चल रहे होते। मैं भी आज से 15-20 दिन पहले शाह हुसैन, उसके AC नहीं चल रहा था, 2-2.5 घंटे AC नहीं चला। तकरीबन 1 बजे के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ट्रेन नहीं आई? नहीं आई। मुसाफिरों ने शिकायत की कि रेलवे का निज़ाम बद से बदतर होता जा रहा है। टिकट महंगे कर दिए गए हैं और सहूलत कुछ भी नहीं। आज भी कराची से रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, मिलत एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस और खैबर मिल ताखिर का शिकार रही। कैमरामैन राना जहाजिर के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। और शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। मतला जज़वी अब्र आलूद और मरतूब। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। शहरी गर्मी की शिद्दत कम होने पर खुश दिखाई दिए। पार्कों का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। मानसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई को शहर में असरअंदाज होगा। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में।
शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में कमी, बादल बरसने के बाद मौसम कदरे बेहतर हो गया। शहर कायद में मानसून के पहले स्पेल के बाद गर्मी की शिद्दत में 4 से 5 डिग्री कमी हो गई। आज भी शहर में बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 70% से जायद रहा। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरों पर सुकून। पार्क में मौसम का मजा लेते रहे। बारिश और होनी चाहिए, लेकिन मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, गर्मी कमी आई है गर्मी में। इसमें हमारी भी आवाम की भी गलती है कि वो कचरा वगैरह डाल देते हैं नालों के अंदर, और उनको भी ख्याल करना चाहिए। और इंतज़ामिया फिलफौर कोशिश कर रही है, लगी हुई है कि नाले नदी नालों को साफ़ करना, रोडों को साफ़ करना, इंतज़ामिया अपने फ़राइज़ को सही तौर पे इंजाम दे रही है जो, और बारिश होगी तो अल्लाह की रहमत होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इस साल 25% से जायद बारिशों का इम्कान है। बारिश का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से शहर पर असर अंदाज होगा। कैमरामैन राना जाजेब के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि जमहूरियत पर यकीन रखने वाली तमाम सियासी जमातों ने वफाकी बजट पास कराने के लिए साथ दिया। हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने के लिए दिन रात कोशां है। महंगाई का खात्मा करेंगे। सिंध में किसी ऑपरेशन का नहीं कहा गया। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में जानिए। सिंध की एहसास महरूमी दूर होगी। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की यकीन दहानी। वफाकी बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। नून लीग के सूबाई ऑफिस मुस्लिम लीग हाउस कारसाज में वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वफाकी बजट को पास कराने में जमहूरियत पर यकीन रखने वाली सियासी जमातों ने भरपूर साथ दिया। अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशां है। महंगाई का खात्मा करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर औरंगजेब साहब ने बजट पेश किया। वो बजट इत्तफाक राय से पास हुआ। तमाम जमातों ने जबरदस्त बजट को सपोर्ट किया, उसके हक में वोट दिया। खेलदास कोहिस्तानी का कहना था कि मुल्की मईशत को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अमन के लिए पाकिस्तान और खुसूसन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी काविशें हैं। मौजूदा मुल्की क़यादत मुल्क को मजीद मजबूत करने के लिए मुतहरिक है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की जल्द तामीर का आगाज होगा। कि हमारे फील्ड मार्शल जो अमेरिका के दौरे पे गए, एक सुपर पावर ने उनको खुसूसी दावत पे मदऊ किया प्रेसिडेंट ने, और ये जो इज्जत और वकार मिला ये पूरी 25 करोड़ अवाम को मिला है। हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान में मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमा राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी का कहना था कि नून लीग जो काम कर रही है इसका कोई नेमुल बदल नहीं। 11 करोड़ के बिस्किट खाने और आवाम के टैक्स से खरीदे गए सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने वाले वज़ीर के खिलाफ सवात वाक़े पर FIR दर्ज की जाए। फिर मुसलसल KPK में PTI की दौरे हुकूमतों में सवात के दरियाए सवात में जो लोग मासूम बहते रहे उनकी जानें गईं, और अभी हालिया आपने देखा कि एक वालिद के सामने उसके बच्चे डूब के मर गए।